Myself is Ravinder Singh, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya number 1, Air Force Hindon, Ghaziabad. In the earlier lesson, I have discussed from the chapter of accounting for share capital. The topics are issue of shares either at par or premium. Thereafter, in another lesson, I have discussed oversubscription of share. How can we calculate the amount in case of oversubscription? Now, in the present lesson, I have discussed about calls in arrear, calls in advance, forfeiture as shares, as well as reissue of shares. Now, first of all, I have discussed about the calls in arrear as well as calls in advance. Now, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि what is the meaning of calls in arrears? When the shareholder failed to pay the amount due on allotment or any of the calls, such amount is known as calls in arrear or unpaid calls. In simple words, if a shareholder does not pay the call amount due on allotment or any calls according to the terms, the amount not so received is called calls in arrears. कि किसी भी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम या कॉल मनी के टाइम, आइदर फर्स्ट कॉल है या सेकेंड और फाइनल कॉल है, कोई भी मनी पे नहीं की ड्यू टू एनी रीजन, दैट अमाउंट इज नोन एज calls in arrear as or unpaid call. For example, if first call money at the rate of rupees 2 per share on 10,000 share is called, but out of this first call money on 9,500 shares is received. So that means कि 500 के जो amount received नहीं हुए, that is known as the calls in arrear. Now in the accounting books of company, we have to do by this with the help of two methods. First, without opening calls in arrear account in books. हम अपनी बुक्स में calls in arrear का अकाउंट खोलना ही नहीं चाहते. तब पहली एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 being first call money due on 10,000 shares at the rate of rupees 2 per share. So ड्यू के टाइम हमने एंट्री की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. Now, at the time of receiving the money, we have to write the entry bank account debit to share first call account, being first call money received only on 9,500 shares. This means कि पहली एंट्री में हमने जब ड्यू किया 10,000 शेयर्स का और उसके बाद रिसीव हुआ 9,500 शेयर का, दिस मीन्स कि 500 शेयर्स का हमारा नॉट रिसीव्ड अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट भी हम कह सकते हैं. Second, if we want to open the calls in arrear account in the books of company, हम अपनी calls in arrear का अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 being first call money due on 10,000 शेयर at the rate of rupees 2 per share. दैट मीन कि पहले वाली एंट्री बिल्कुल सेम होगी, बट एट द टाइम ऑफ सेकेंड, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 1,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000. सो दैट मीन्स कि इसमें हमने अपना कॉल्स इन एरियर अकाउंट शो कर दिया. सो इससे ये समझ में आता है कि अगर एक एग्जाम्पल में हम ये सोचें कि हमारे एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 95 बच्चे पास हो गए हैं, सो दिस मीन्स इट्स अंडरस्टूड 5 students are failed. This is the first case. This is the first case कि हमने अंडरस्टूड कर लिया कि हमारे 5 बच्चे फेल हो गए. सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन 10,000 शेयर्स हमारे जो हैं ड्यू थे और हमने 9,500 पर रिसीव किया और ये हमारे 500 जो हैं वो रिसीव्ड नहीं हुए. इट्स अंडरस्टूड. बट इन द सेकेंड एग्जाम केस वी हैव टू शो कि हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं, 95 फेल हुए हैं एज वेल एज 95 पास हुए हैं, एज वेल एज 5 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया. मीन हम क्लियर कर रहे हैं कि 95 पास है और 5 फेल है. सिमिलरली
10,000 शेयर में से हमारे 9,500 शेयर के पैसे दिए हैं और 500 ने पैसे नहीं दिए। बाय दिस वे वी हैव टू शो कि हमारी एंट्रियां हो सकती हैं। देयर आर टू मेथड्स टू डू द जनरल एंट्रीज फॉर कॉल्स इन एरियर। इन सिंपल वर्ड्स वी हैव टू से दैट for non-receipt of call amount, we have to write the calls in arrear account debit to relevant call. Relevant call का मतलब वो first call भी हो सकती है और second and final call भी हो सकती है। Now thereafter, bank account debit to calls in arrear. बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, अगर वो बाद में अपनी कॉल दे देता है, जैसे फर्स्ट कॉल के टाइम उसने नहीं दिया और एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल वो दे रहा है, तो हम सेकंड कॉल के टाइम ये एक एंट्री बना लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। नाउ नेक्स्ट देयर इज कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल इन एडवांस का मतलब व्हेन द कॉल अमाउंट ऑफ शेयर रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। A company can accept calls in advance if its article of association permits. कि अगर article of association permit करता है तो कंपनी call money advance में received कर सकती है। So when the call in advance is received, so entry is bank account debit to calls in advance. कि जब amount receive किया means for example अगर कंपनी ने first call के टाइम पे second call receive कर ली है, so entry आएगी bank account debit to calls in advance. अब एट द टाइम ऑफ सेकेंड कॉल तो कंपनी जो है वो एंट्री करेगी कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू रेलेवेंट कॉल, आइदर इट मे बी अ फर्स्ट कॉल और इट्स अ सेकेंड कॉल। अब इसके बाद बात आती है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियर अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को कैसे शो करती है। इन केस ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इट इज शोन इन द नोट टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल टू द बैलेंस शीट as a deduction from the amount of subscribed but not fully paid up under the subscribed capital। कि कंपनी जब बैलेंस शीट बनाएगी उसके जो नोट टू अकाउंट बनाया जाता है उसमें शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में से कॉल्स इन एरियर का अमाउंट को डिडक्ट करके अपने नोट्स टू अकाउंट में दिखाएगी। एंड देयर आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ कॉल इन एडवांस इन द बैलेंस शीट, इट्स वेरी सिंपल कि ऑन द कॉल्स इन एडवांस शोन इन द इक्विटी एंड द लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड। करंट लायबिलिटी उसका मेन हेड होगा और सब हेड होगा अदर करंट लायबिलिटीज। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सामने आती है कि कंपनी कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी या नहीं करेगी, या कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी। फॉर दिस पर्पस, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। The company, if authorized by its articles of association, may charge interest at the specified rate on calls in arrear from the due date to the date of payment। कि जो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड रेट होगा उस रेट के अकॉर्डिंगली वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। बट इन केस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज साइलेंट और इट डज नॉट हैव एनी क्लॉज टू दिस इफेक्ट, Table F of the Companies Act 2013 shall apply, which provide for interest on calls in arrear at the rate of 10% per annum। कि इस मीन सिंपल है कि अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रेट लिखा है उसके अकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। अगर नहीं लिखा तो टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब the company has the right to waive the interest on calls in arrear। अब इसमें कंपनी का राइट भी होता है कि वो चाहे तो इंटरेस्ट वेव भी कर सकती है। Now there is interest on calls in advance। Interest on call in advance is paid if the articles of association so provides, but if the article of association is silent or it does not have clause to this effect, provision of Table F of the Companies Act 2013 apply, and the company is liable to pay interest on calls in advance at the rate of 12% per annum। इसमें भी यही सिंपल है कि अगर कंपनी ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड किया है तो कंपनी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कॉल्स इन एडवांस पर देगी, अदरवाइज स्पेसिफाइड नहीं किया तो कंपनी को 12% पर एनम के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
Now this calls in advance and calls in arrear I have explained with the example. That question I have taken from the AISSC 2016 का एक क्वेश्चन लिया गया. On 28 February 2016, the first call of ₹2 per share became due on 50,000 shares, equity share allotted by Mr. Kumar Limited. Komal, a holder of the 1,000 shares, did not pay the first call money. कि 1000 रुपए के अकॉर्डिंगली उन्होंने, जो कोमल है उसने 1000 इंटू 2000 रुपए नहीं दिए. दैट इज अ कॉल्स इन एरियर. कोविल, a holder of the 750 share, paid the second and final call of ₹4 per share along with the first call. मीन कोविल जो है उसने 750 जिसके पास शेयर है उसने 4 रुपए कॉल के अकॉर्डिंगली पैसे एडवांस ही जमा करा दिए. पास इन नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. अब यहाँ पर ये समझ में आया कि पहले 50,000 एट द रेट ऑफ 1 लाख रुपीज ड्यू हो गया, जिसमें से कोमल ने 2,000 रुपए नहीं दिए. दैट इज 98,000 रुपीज हमारे रिसीव हुए. अब कोविल के 3,000 जो रिसीव हुए तो टोटल हमारा अमाउंट बन गया 1,01,000. जो 2,000 रुपीज रिसीव नहीं किए गए थे कोमल के, दैट इज कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट हो गए. टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख, तो ये तो पूरा अमाउंट 1 लाख आ गया, और क्योंकि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट शो कर रहे हैं. एंड द कॉल्स इन एडवांस दैट इज 750 into 4 हमने जो किया कोविल के लिए, वो हमारा अमाउंट यहाँ आ गया 3,000. सो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट 1,01,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख, टू कॉल्स इन एडवांस 3,000 rupees. This question I have taken from the examination paper of 2016. Now there is a next topic is accounting treatment in case of forfeiture of shares. अब ये forfeiture of shares होता क्या है? Shareholder failed to pay one or more installments, either allotment money or call money, then his share is cancelled and money already paid is forfeited by the company. Means ऐसा ही क्वेश्चन 2015 में आया था. गिव द मीनिंग ऑफ द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड ट्रीटिंग एक्चुअली रिसीव्ड अमाउंट एज फॉरफिटेड. कि कंपनी ने जो अमाउंट फॉरफिट कर लिया, मीन जब्त कर लिया. ये इस तरह से है कि अगर किसी पर्सन ने कोई रेफ्रिजरेटर लिया है इंस्टॉलमेंट पर, लाइक 30,000 का रेफ्रिजरेटर है, उसने कहा 3,000 रुपीज की मैं 10 इंस्टॉलमेंट दूंगा. आफ्टर द 4 इंस्टॉलमेंट ही कांट एबल टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स. वो उसके बाद की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा. अब कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो उसके 4 इंस्टॉलमेंट को भी फॉरफिटेड कर ले और उसका रेफ्रिजरेटर भी वापस ले ले. इसी तरह से शेयर होल्डर्स में भी अगर कोई एक या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स वो नहीं दे पा रहा तो कंपनी उसके शेयर फॉरफिटेड कर लेती है और उसका अमाउंट भी सारा जब्त कर लिया जाता है. सो हाउ कैन वी शो दिस फॉरफिटेड शेयर इन द बैलेंस शीट? टिल द टाइम ऑफ फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड. जब तक वो शेयर री इशू नहीं कर दिए गए, द बैलेंस ऑफ द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज एडेड टू द पेड अप कैपिटल अंडर सब्सक्राइब कैपिटल इन द नोट ऑफ अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल. मीन ये भी नोट्स ऑफ अकाउंट में सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड किया जाएगा. क्लियर? नाउ व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार? एंट्री इज, अगर पार की बात करें, पार का मतलब इशू प्राइस इक्वल्स टू द नॉमिनल वैल्यू और द फेस वैल्यू ऑफ शेयर. एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स अकाउंट. कॉल्स अकाउंट विद अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन द कॉल्स. शेयर कॉल्स भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं, सेकेंड कॉल भी लिख सकते हैं, और कॉल्स इन एरियर भी हम लिख सकते हैं.
तो इसमें जब हम इस एंट्री को करते हैं तो हम सबसे पहले शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट लिखते हैं, इसमें कॉल्ड अप अमाउंट लिखा जाता है, क्लियर। और उसके बाद शेयर फॉरफीचर में हम पेड अप अमाउंट लिखते हैं कि उसने कितना अमाउंट पेड अप किया, दैट मीन्स कि कंपनी ने कितना अमाउंट रिसीव्ड किया। उसके बाद अलॉटमेंट में और शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या कॉल्स इन एरियर में जो हम लिख रहे हैं जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड किया गया। इन सिंपल वर्ड्स वी हैव टू राइट, शेयर कैपिटल में हम लिखते हैं कॉल्ड अप अमाउंट, शेयर फॉरफीचर में हम लिखते हैं हाउ मच ही और शी पेड, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो होता है अनपेड। So by this way we have to make the forfeiture of share issued at par. So this is by example. Honda Limited 10,000 equity share of 100 each payable as follows: rupees 20 on application, 30 on allotment, 20 on first call and the 30 on second and final calls. 10,000 share were applied and for allotted. All money due received with the exception of both calls on 300 shares held by the Supriya. Supriya के पास 300 shares है, उसने ना तो फर्स्ट कॉल दी है और ना सेकंड कॉल उसने दी है। सो पहली एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख रुपीज, दैट मीन 10,000 shares मल्टीप्लाई विद द 20 पर शेयर रिसीव शेयर एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जब शेयर अलॉट किए गए तो एंट्री आई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विद द रुपीज 2 लाख, क्योंकि 10,000 शेयर्स ही अप्लाई किए गए, 10,000 कंपनी ने इशू किए थे। देयर आफ्टर नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दिस इज 3 लाख, दैट इज 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई विद द 30 जो कि अमाउंट था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट भी फुल रिसीव हुई है तो एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ देयर आफ्टर शेयर फर्स्ट कॉल, सो एट द टाइम ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल हमारी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीज 2 लाख, बीइंग मनी अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 20 पर शेयर, कि हमारे 10,000 शेयर पर 20 के अकॉर्डिंगली हमने अमाउंट ड्यू किया। बस इसमें से सुप्रिया जिसने कि 300 शेयर्स पर पैसे नहीं दिए थे, बोथ कॉल नहीं दी थी, सो उसके 300 के नहीं देने के कारण हमारी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,94,000। यहां पर हम एंट्री दूसरी भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तब हमारा बैंक अकाउंट 1,94,000 होगा, कॉल्स इन एरियर 6,000 टू फर्स्ट कॉल होगा। सो नाउ देयर आफ्टर सेकेंड कॉल शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, मीन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 30 ड्यू हो गए। अब उसमें से 300 फिर सुप्रिया ने नहीं दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2,91,000। अब उसके बाद हमारा जो मेन एंट्री है वो है फॉरफीचर की। अब उसमें आ गया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमारा था कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप में हमारे पूरे के पूरे रुपीज कॉल्ड हो चुके हैं, सो दैट मीन्स 300 इंटू 100 हमने किया 30,000। यहाँ पर उसने फॉरफीचर जो हमने सुप्रिया का अमाउंट फॉरफीट किया, उसने पहली दो चीजें दे रखी थी, शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट, तो दैट मीन 300 इंटू 50 हो गया 15,000। फर्स्ट कॉल जो उसने नहीं दी थी वो थी 6,000 और सेकंड कॉल जो उसने नहीं दी थी वो था 9,000। बाय दिस वे वी हैव टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कैन डू एट par. Now thereafter next is forfeiture of share issued at premium. In this there are two cases. Case 1, if security premium amount is received on forfeited share, कि forfeiture shares पर हमारा अमाउंट रिसीव्ड हो गया है, कि सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हमने फॉरफीचर शेयर पर रिसीव कर लिया, तो जब हमने अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का रिसीव किया होता है तो हम अपनी जनरल एंट्री में उस अमाउंट को शो नहीं करते एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तब एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर। सेम उसी तरह शेयर कैपिटल में हमारा कॉल्ड अप, शेयर फॉरफीचर में हमारा पेड अप, और शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल्स या कॉल्स इन एरियर अगर हम लिख रहे हैं तो वहां पर हमारा अमाउंट हो गया unpaid. Now, case second, if the security premium amount is not received, कि in for the forfeiture share हमारा security premium amount received नहीं हुआ, तो हमारी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर। सेम उसी तरह कि हमारा शेयर कैपिटल में हमारा कॉल्ड अप अमाउंट, शेयर फॉरफीचर में हमारा पेड अप अमाउंट, और शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन एरियर या रेलेवेंट कॉल में हम अपना अनपेड अमाउंट दिखाते हैं। और इसमें ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पेड है तो हमारी एंट्री होगी एट पार की तरह, और अगर हमारा प्रीमियम नॉट पेड है तो हम उसको अपनी जनरल एंट्री में अलग से डेबिट करेंगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन, Sunaina, a shareholder holding 500 share at the rate of 10 each, did not pay the allotment money for, including the premium of ₹2। कि सुनैना ने ना तो अलॉटमेंट दी जिसमें ₹2 प्रीमियम था, दैट मीन ₹2 अलॉटमेंट और ₹2 प्रीमियम। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ₹3, दैट मीन ₹2 उसने अलॉटमेंट नहीं दिए और ₹3 उसने फाइनल कॉल के लिए, ₹5 नहीं दिए। अब उसके अमाउंट हो गया जो उसने पेड किया वो था ₹5। सो हमारी एंट्री आ गई यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1000, और उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2000, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्रेडिट 1500 टू शेयर फॉरफीचर 2500। शेयर कैपिटल में हमारा अमाउंट आया कॉल्ड अप मीन 500 इंटू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आया ₹2, 2 इंटू 500, और शेयर अलॉटमेंट जो उसके ने पेड नहीं करी थी दैट इज 2 इंटू 500, सॉरी 4 इंटू 500, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में उसका 3 इंटू 500, और शेयर फॉरफीचर में उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी जो कि ₹5 थी, तो ₹5 इंटू 5 दैट इज 500, दैट इज 2500 इज देयर अमाउंट। नाउ देयर इज अ नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। री इशू के टाइम एंट्री क्या होगी, यहां पर पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज एक पर्सन ने एक टीवी खरीदा इंस्टॉलमेंट पर, उस इंस्टॉलमेंट में उसने डिसाइड किया कि ₹15,000 का टीवी लिया, जिसमें उसने कहा कि वो 3000 की 5 इंस्टॉलमेंट कंपनी को पे करेगा। आफ्टर द 2 इंस्टॉलमेंट ही कांट एबल टू पे द मनी। 2 इंस्टॉलमेंट दिए, ₹6000 उसने दे दिए और बाकी के पैसे वो दे नहीं पा। अब कंपनी उसके बाद कंपनी का राइट हो जाता है 6000 भी वो फॉरफिट कर लेगी और कंपनी उस टीवी को भी फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। अब कंपनी उस टीवी का करेगी क्या, उसको वो रीसेल करेगी। रीसेल करने के बाद कंपनी ने सपोज रीसेल उसको कर दिया ₹10,000 में। अब कंपनी को 6000 पहले मिले थे, ₹10,000 उसने दोबारा रीसेल में कर दिया, मीन टोटल उसका हो गया ₹16,000, तो ₹1,000 यहाँ कंपनी को फिर से प्रॉफिट हुआ। सो दैट इज द री इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। सो री इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में भी इसी तरह है कि अगर किसी ने कॉल मनी या अलॉटमेंट नहीं दी, कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर लेती है और उसके बाद उसको री इशू करती है। तो व्हेन फॉरफिटेड शेयर इशूड एट पार, अगर री इशू किए जा रहे हैं पार पर, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। व्हेन फॉरफिटेड शेयर आर इशूड एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट का मतलब यह है कि वहां पर कंपनी ने जो अमाउंट उसका फॉरफिट किया है उतना ही वो डिस्काउंट दे पाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ देयर आफ्टर अगर कंपनी वही फॉरफिटेड शेयर इशूड एट प्रीमियम पे कर रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दैट मीन इफ देयर इज एनी प्रॉफिट और गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर होगा कंपनी को, तो वो ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कंपनी को ₹1000 प्रॉफिट हुआ टीवी के ऊपर, तो कंपनी ने उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो इसी तरह शेयर फॉरफिट और री इशू के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट होता है दैट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which was comes in 2017. XZ Limited forfeited 1000 equity share of ₹10 each for the non-payment of first call of ₹2 per share. The final call ₹3 per share was not to be paid. Calculate the maximum amount of discount at which these shares can be reissued. The maximum amount of discount at these shares can be reissued at ₹5
पर शेयर और ₹5,000। ये कंपनी ने जो रिसीव किया था 5 रुपए पहले रिसीव कर चुके हैं। फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, 3 कॉल नहीं की, इसको ना कंपनी 5 रुपए रिसीव कर सकी, तो 5 रुपए ही कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। नाउ this forfeiture and reissue calculation I have discussed with the example. The director of Polyplastic Limited resolved that 200 equity shares of ₹100 each can be forfeited for non-payment of the second and final call of ₹30 per share. Out of these, 150 shares were reissued at ₹60 per share to Mohit. Show the necessary journal entry. So, first of all, the first entry is share capital account debit to share forfeiture to share second and final call. Share capital में कौन सा अमाउंट आएगा? That is called up. That is 200 share at the rate of ₹100. That amount is called up. Thereafter, how much is share forfeiture में कौन सा आएगा? जो paid up होगा. That means 30 rupees unpaid है, तो 70 rupees उसके क्या हो गए? Paid up. तो in the share forfeiture हमारी एंट्री में आ गया अमाउंट, there is 14,000. And the share second and final call, that is calls in arrear या call जो उसने received नहीं की, that is 30 rupees multiply with the 200 as narration mentioned, being 200 shares forfeited for the non-payment of final call 30 per share. So share capital में हमारा अमाउंट आ गया called up, share forfeiture में हमारा आ गया paid up, और share second and final call में हमारा आ गया unpaid. अब बारी आती है how can we reissue the entry. बन गई बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट 6,000 to share capital. शेयर कैपिटल में इशू प्राइस that is 150 multiply with the 100 rupees. बैंक अकाउंट में जो डेबिट होता है वो होता है री इशू प्राइस. री इशू प्राइस इज ₹60 रुपीज का हमारा जो री इशू प्राइस था उसके अकॉर्डिंग हमने 150 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर बन गया 9,000. एंड द रिमेनिंग पार्ट इज डिस्काउंट जो कि 40 रुपीज था. 40 इंटू मल्टीप्लाई विद द 40 मल्टीप्लाई विद द 150, दैट आंसर गोज टू 6,000. सो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, शेयर फॉरफीचर डेबिट 6,000 टू शेयर कैपिटल आ गया 15,000. सो बैंक अकाउंट में हमारा आता है री इशू प्राइस, शेयर फॉरफीचर में हमारा आता है डिस्काउंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द री इशू प्राइस एज फेस वैल्यू जो भी उसकी होगी. नाउ देयर इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. अब 200 शेयर्स हमने जो फॉरफिट किए थे वहां पर हमारा अमाउंट था 14,000 फॉरफिटेड. इसी तरह से हम उसकी प्रोरेटा कैलकुलेशन करेंगे कि 150 में हमारा प्रोरेटा हो गया 10,500. सो उसमें जो री इशू के टाइम जो हमें लॉस हुआ था दैट इज 6,000. लॉस कह सकते हो या डिस्काउंट कह सकते हो. तो द रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व दैट शोन अंडर द हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस के सब हेड में इसको शो किया जाएगा. और उसके बाद जो रिमेनिंग 50 शेयर्स बच गए दैट इज 3,500 जो उसका रिमेनिंग अमाउंट है वो शेयर फॉर फीचर के हेड में हम बैलेंस शीट में अपनी नोट्स टू अकाउंट्स में उसको दिखाएंगे. सो इन दिस क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस टॉपिक्स की हमने सारा कुछ आपको बताया. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. शेयर कैपिटल में हमारा होता है कॉल्ड अप, शेयर फॉर फीचर में हमारा होता है पेड अप, और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में हमारा आता है कॉल्स इन एरियर. नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ री इशू बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बैंक में हमारा आता है री इशू प्राइस और शेयर कैपिटल में हमारा इशू प्राइस, और उनका डिफरेंस जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं वो शेयर फॉर फीचर में होगा. और रिमेनिंग दोनों के फॉर फीचर और री इशू के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व दैट शोन इन द अंडर द हेड ऑफ under the subhead of reserves and surplus. Thank you. Have a nice day.